So hi there, it's me Abhay, and in this video we are going to discuss a very important topic, which is not a topic, but yeah, it's a kind of very important thing, which is implementation. So like in the previous Div 3 contest, I was noticing something in the submissions कि क्वेश्चन 3 जो था प्रॉब्लम 3 में टेक्स उसमें सिर्फ 3 के सबमिशन थे at the time of contest there were approx 5 के submissions but approx 1 के submission got FS3 like they failed on the test cases, right? Then yeah, I and this question was especially for the implementation, like it is a high implementation problem, not higher but yeah, 1500 implementation problem. So I do solve this question. So I think to discuss the approach, like how can you think the problems of the implementation in the future contest and how I approach this question, right? And this will be an editorial for this question and especially for the problems like implementation with the tax implementations, right? So before getting into the video, let me just tell you about Newton School. So Newton School is a higher tech company which teaches you full stack development from absolute basic to advanced level, right? They didn't take any fee until you get placed in the top companies, and you will be getting the top mentors, industry projects, and the mock interview sessions. And the mentoring will be definitely be one-on-one mentoring, right? And all the mentors will are placed in the top companies, and yeah, they have also a cool feature called as a launchpad where you can sit and write the code, and you will be getting the certificate of completion. And best instructor will be provided to you, and you can check out the free courses available here. And still you have any doubts or any queries, you can check out the FAQ site up here, and the links of the site will be in the description. Do check it out, right? So let's jump into question, like question name is टेक्स. So basically इस क्वेश्चन में था क्या कि हमें एक रेक्टेंगुलर पीस गिवन है n क्रॉस m का. So yeah, मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे मैंने उस क्वेश्चन का टाइम सोचा था, ठीक है, right? The first year I read the question like we are given the rectangular piece of n cross m, then let us denote, like इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले ये होता है कि आपको प्रॉब्लम पूरी अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तभी उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, नहीं तो कोई एज केस छूट जाएगा, राइट? सो लेट अस नोट द सेल विद आई वर्टिकली एंड जे हॉरिजॉन्टली आई जे, राइट? एक पर्टिकुलर सेल का नाम से बता रहे आई जे है. Then upper left cell is reference 1, 1 and lower right cell is n, means first n 1, 1 और last n, n, m है, right? So draws a take of reference size in the field. A take of size d more than 0 with the center I, j is drawn as follows. मतलब एक सेंटर उसने पॉइंट मान लिया I, j, वहाँ से वो एक टिक ड्रॉ करेगा ऑफ साइज d की, ठीक है. सो फर्स्ट सेंटर ऑफ द सेल इज I, j is painted black. तो उसने I, j को पहले ब्लैक पेंट कर लिया इस वाले पॉइंट पे जहाँ माउस है, cursor है. Then exactly d cells on the top diagonally to the center and exactly d cells on the top left diagonally and top right diagonally to the center and also painted black, right? अगर मैंने इस सेल को सेंटर माना है तो फिर मैंने इसके टॉप डायगोनल लेफ्ट एंड टॉप डायगोनल राइट को मैंने ब्लैक पेंट कर दिया, राइट? दिस दैट इज ऑल सेल्स विल कोऑर्डिनेट I माइनस एच एंड J प्लस माइनस एच, ठीक है. इसका क्या रोल है कि ये I, J है. अगर मैंने h माना है 2 तो ये क्या होगा I माइनस 1, ये होगा I माइनस 2, राइट? ये क्या होगा I माइनस 1, ये होगा I माइनस 2, राइट? अब मैं jth कोऑर्डिनेट पे आऊँ तो ये j है, ये होगा j माइनस 1, ये होगा j माइनस 2, ये होगा j प्लस 1, ये होगा j प्लस 2, क्योंकि जब हम प्लस करते हैं तो हम आगे जाएंगे, जब हम माइनस करेंगे हम पीछे जाएंगे. तो j वाला पीछे जाने वक्त माइनस होगा, आगे जाने वक्त प्लस होगा, राइट? सो या यू आर like this line, an already painted cell will remain black and if painted again, right? वो मतलब black ही रहेगा, एक बार black हो गया तो black ही रहेगा. You can find an example of 4x4 block with 2 ticks of size 2 and 3, right? अगर मैं इस सेंटर को मानता हूँ तो ये 2 साइज की टिक है, अगर मैं इसको सेंटर मानता हूँ ये 3 साइज की टिक है, राइट? क्योंकि इसके ऊपर 3 ब्लॉक्स और ब्लैक्स हैं, राइट? You are given a description of a checkboard of size n cross m, claims that field came out after he draws possibly 0 ticks on it. The ticks could be of different sizes, but the tick size is at least k, that is d is more than equal to k for all ticks, right? तो उसने ये बोला है कि अब वो हमें एक चेकर्ड फील्ड गिवन है हमें, तो वो क्लेम करता है कि उसके ऊपर जितने भी टिक्स हैं कम 0 भी हो सकते हैं, पर अगर कोई टिक है तो वो कम से कम के हाइट का होगा, मतलब जितने भी टिक्स हैं वो के हाइट के इक्वल या उससे बड़े होंगे, राइट?
जैसे मैं यहाँ इस बोर्ड के ऊपर मैं क्लेम कर लूँ कि कम से कम हाइट यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर एक टिक मुझे 2 हाइट का मिल गया, यहाँ पर 3 हाइट का मिल गया। अगर मैं यहाँ क्लेम करूँ कि कम से कम हाइट 3 है बट मुझे यहाँ 2 साइज़ का भी मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमारी वो वाली फील्ड रॉन्ग हो जाएगी, राइट। सो या बस शायद हमें इस क्वेश्चन में बस इतना करना था। हमें क्वेश्चन पूरा क्लियर है। नाउ लेट्स जंप इनटू द अप्रोच हियर। सो उसके बाद अभी हमें क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। अब नाउ वी विल चेक फॉर द कंस्ट्रेंट्स, राइट, बिकॉज इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग हम अपना एल्गोरिथम बिल्ड करेंगे, राइट। सो फर्स्टली हमें टेस्ट केसेस गिवन है 100 तक, and then for every test case we are given 3 integer n, m and k. n and m are the integer for the rectangular field and k is the height, कि हमें कितनी डेप्थ चाहिए, राइट। एंड आई कैन सी दैट n and k are less than n, क्योंकि हमें हाइट जो है वो 10 के बीच में दी है और विड्थ हमें 19 गिवन है। तो यहाँ पर एक अप्रोच ये लगती है कि हम n इंटू एम तो हम रेक्टेंगुलर फील्ड रिवर्स करेंगे। नाउ वी कैन चेक फॉर एवरी स्टार n क्रॉस m हम जब रन करेंगे उसके अंदर हम हर स्टार के लिए हम की हाइट चेक कर सकते हैं n इंटू एम इंटू के की कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, एंड दिस विल रन परफेक्टली बिकॉज द कंस्ट्रेंट आर प्रीटी लो। एंड टेस्ट केस, इफ वी आल्सो इंक्लूड टेस्ट केस, देन इट विल जस्ट रन अप टू 100 इंटू 1000 एंड देन 1e5, राइट। सो इट विल डेफिनेटली बी रन अंडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n इंटू एम इंटू के। सो नाउ वी जस्ट हैव टू इनपुट आउटपुट yes or no. So now our question is clear. Now let me just explain you how we can build this out, right. So let me just explain a pretty good logic, right. This is the perfect where is this? Yeah, can I paste pasting? Okay, cool. Okay, cool. So how can I zoom it out? Right. So in this case, right. So in this case we are given like 4:4, like 4 into 4 का बोर्ड है हमारे पास, और मिनिमम हाइट का क्लेम किया है 1 का, राइट। सो अब हमें अब मैं थोड़े बेसिक से बात करूँ कि सबसे पहले लोग क्या सोचेंगे कि हम वो i, j कैसे ढूंढें, कि जिस i, j हम कैसे ढूंढें कि हम जिसके ऊपर और यहाँ पर हम जा सकें, राइट। अब यहाँ पर हम i, j ढूंढने की जगह हम हर स्टार को चेक कर सकते हैं। क्या उस स्टार को लेके अगर मैं टिक बनाऊं, क्या वो k की हाइट की ज़्यादा बनेगा, राइट। सो पहला स्टार ये है। अगर मैं इस स्टार पे चेक करूं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बना सकता हूँ मैं कोई भी टिक, राइट। सो इट विल रिमेन एज फॉल्स, कि इस टिक ये स्टार को मैंने यूज़ अभी तक नहीं किया। देन डॉट्स को मैं हमेशा यूज़ मान लूँगा कि वो यूज्ड हैं, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा यूज्ड हैं, राइट। सो डॉट्स आर यूज्ड. Let me just make all the dots as used, right. Now when I go to this star, then इसके भी मैं यहाँ पर minimum 1 का नहीं बना सकता, right. Then again I go for this star, मैं इसके यहाँ पर और यहाँ पर नहीं बना सकता हूँ, यहाँ पर डॉट आ गया, right. When I go for this star, अब यहाँ पर स्टार पर नोटिस करने भी क्या है, यहाँ पर मैं एक बना सकता हूँ, यहाँ पर भी एक बना सकता हूँ, मीन्स दिस मेक्स एन टिक, राइट, इस स्टार के बेस पे, और मिनिमम हाइट क्या है के की, मतलब के से बन रही है, मतलब 1 से बन रही है, मैं 1 से लेकर n तक, क्योंकि मिनिमम 1 बोला है और मैक्सिमम n हो सकती है, तो मैं 1 से लेकर n तक सारी हाइट चेक कर लूँगा, राइट, बिकॉज 1 क्या है के, सपोज के से लेकर n तक, सो इट विल रन अप टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n इंटू एम इंटू के, सो नोट एंड आउट, राइट. सो या एट एन ईजी फॉर्म. सो अब मैं यहाँ पर चेक कर लिया कि यहाँ पर एक टिक बन रही है. सो वट आई विल डू, आई विल मेक दिस टिक एज marked, right. Then this will be marked, right. When I come to this tick, then I can check like this tick is not used. Then I come to this tick, this is also not used because I can't make any tick. Then I come here, I can check that I can make this one as tick of size minimum 1. So what I will do, I will make these as marked. When I come to this tick, I check that this is also a tick of size 1. अब यहाँ पर ये मार्क हो चुकी है, पर उसने बोला है कि एक मार्क टिक को हम दोबारा मार्क कर सकते हैं, पर वो रहेगी ब्लैक ही, राइट. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लाइक हमने पहले पढ़ लिया, तो अब हमें इम्प्लीमेंटेशन करते हो ईजी है. सो आई विल मेक अगेन मार्क दिस आउट.
अब हम देख सकते हैं कि सारी टिक्स जो हैं वो मार्क हो चुकी हैं, पूरा बोर्ड हमारा मार्क्ड है। अगर इसमें कोई भी ऐसी प्लेस होती जो मार्क नहीं रहती, लेट मी जस्ट टेक दैट केस ऑल्सो, राइट, ओके, if I make this as dot, right, so now what will be the possibility, right, ये तीन का पेयर बनेगा सबसे पहले, राइट, फिर ये तीन का बन जाएगा, राइट, बस। बट इसके लिए मैं जब इसकी बात करूँगा तो इसके लिए यहाँ पर नहीं होगा, और मतलब इसका कोई टिक नहीं बनेगा। तो एट लास्ट क्या हो, एट लास्ट क्या बचेगा कि सारी डॉट्स तो आपस में है, राइट, बट ये वाला स्टार मार्क नहीं रहेगा कि इस स्टार का कोई वो नहीं है, राइट, मतलब इसका कोई टिक नहीं बनी है। तो पर उसने क्लेम किया जितने भी स्टार्स हैं वो एटलीस्ट की हाइट की बनाएंगे, टिक बनाएंगे, राइट। सो बट इस स्टार का कोई भी हमारे पास वो किसी टिक में नहीं आ रहा, वो इस स्टार का मतलब हाइट का 0, बट क्लेम करने का 1 का। सो हेयर अगर मुझे, मैं जो अभी फॉलो कर रहा हूँ कि मैं हर आई को मैं जैसे टिक बना रहा हूँ ऊपर नीचे, उसके बाद भी अगर कोई स्टार अनविजिटेड अनमार्क्ड बचता है तो उसका मतलब ये है कि हमारा वो कि कोई ऐसा स्टार है जो के से कम का है, के से कम का है, राइट, के से कम हाइट का है, राइट। सो वहाँ पर हम नो प्रिंट करेंगे, अदरवाइज वी विल प्रिंट यस, राइट। दिस इज द ओनली लॉजिक। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन सूडोवर्ड से बताता हूँ, बट मेरी इम्प्लीमेंटेशन देखने के ओके, सो नॉट गेटिंग रेस, राइट। सो मेरी इम्प्लीमेंटेशन देखने से पहले खुद इम्प्लीमेंट ट्राई करना, राइट। सो लेट मी जस्ट गिव यू सूडो इम्प्लीमेंटेशन कि अगर मैं करंटली आई कोमा जे पे हूँ, राइट, आई कोमा जे दिस इज रनिंग एनक्लोजम, अगर मैं करंटली आई कोमा जे पे हूँ और ये स्टार है, राइट, अगर ये स्टार है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं हाइट के से लेकर एन तक चेक करूँगा, क्या इस स्टार से के से लेकर एन तक की हाइट्स में कोई भी हाइट बन रही है, राइट। लाइक मैं एक फंक्शन बनाऊंगा नाम समथिंग लाइक गो। सो इसमें मैं क्या पास करूँगा, आई कोमा जे कोमा के, ये के, ठीक है, ये वाला के, लेट सपोज, हाँ मैं ये वाला के पास करूँगा, राइट में, ठीक है। इस फंक्शन में क्या करूँगा मैं कि इस फंक्शन में ये चेक करूँगा कि अगर आई प्लस, सो वाई इट इज़ अगेन कमिंग बैक, राइट। सो या अब देखो, अब मैंने उस फंक्शन में क्या पास कर लिया, आई कोमा जे कोमा के, लेट्स सपोज इट बी डी, राइट, आई यूज डी इन माई कोड। सो अब मुझे आई कोमा जे से डी हाइट का मैंने ऊपर चेक करना, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रन अ लूप ऑफ x, right, let's suppose my integer be x, so what I will do from x be going from I equal to 1 to d, because मैंने d हाइट चेक करनी है उसके ऊपर। सो क्या करूँगा, अगर i माइनस एक्स एंड let me just click pen again and j minus x, right, अगर i minus x और j minus x is equal to i minus x and j plus x is equal to star है, let me just remove my webcam face cam just a minute, right, अगर अगर i plus i minus x मतलब i minus x, let me just draw a diagram something like this is I comma j and this is i minus x and j minus x and this is I plus x and j plus x, this is minus, right, minus। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब ये दोनों स्टार है तो मैं क्या करूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, मैं फिर अगले वाले पे चेक करूँगा, मतलब x प्लस प्लस होगा, x 1 की जगह 2 हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ चेक करूँगा d तक, मतलब d हाइट बन रही है कि नहीं बन रही है, ऐसे करूँगा, ठीक है। अगर कहीं पर ये मुझे यहाँ पर स्टार नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पर रिटर्न कर दूंगा कि वो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं पूरा आई से लेकर जे तक रिवर्स कर चुका हूँ और मुझे ये सारी कंडीशंस पास हुई हैं तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, मैं दोबारा से आई से लेकर डी तक का लूप चलाऊंगा और इन सभी को दोबारा से ट्रू मार्क कर लूँगा। मैं साथ में ट्रू नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर मैं फॉल्स कंडीशन ढूंढ रहा हूँ कि आई से लेकर डी के बीच में कोई फॉल्स मिलेगा तो मैं उसको फॉल्स कर दूंगा, मतलब रिटर्न कर दूंगा, मैं उनको मार्क नहीं करूँगा, राइट। अगर मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, राइट, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, लेट्स सपोज कि मेरा कुछ ऐसा पैटर्न बनता है,
ओके, लेट्स सपोज दिस ओनली, ठीक है। नहीं, ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया। राइट, अब मेरे को यहाँ पर 3 की हाइट चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले आई कोमा जे से मैं आई माइनस वन जे प्लस वन आई माइनस वन जे माइनस वन पे जाऊँगा। अब मैं देखा ये दोनों स्टार है, देन आई विल मूव अगेन। अब मुझे 3 की हाइट, लेट्स सपोज मैं 2 की हाइट चेक करनी है, राइट। सो मैं सेकंड हाइट पे जाऊँगा, मैं यहाँ देखूंगा आई माइनस वन जे प्लस वन यहाँ पर स्टार है, बट ये स्टार नहीं है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर लूँगा, मतलब मुझे अब कुछ आगे मार्क करने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी स्टार होता तो मैं यहाँ पर इसको भी पास कर लेता और यहाँ पर लूप खत्म होता। लूप के बाद मैं क्या करता, इसको दोबारा से ऐसे रिवर्स करता, आई से लेकर आई कोमा जे से, और वहाँ से मैं इन सभी को विजिट मार्क कर लेता कि यहाँ पर मैंने इनको विजिट कर चुका हुआ है। एंड एट लास्ट मैंने जब ये पूरा प्रोसेस कर लिया है एंड ये वाला, देन आई विल चेक कि कोई ऐसा फॉल्स बचा है कि नहीं बचा। अगर कोई अनविजिटेड बचा तो मैं नो करूँगा, अदरवाइज आई विल प्रिंट यस, राइट। So basically for the implementation I will just again repeat this question. For the implementation problem you first need to read the question more clearly, like question की हर चीज़ clear होनी चाहिए कि लिखा क्या हुआ है, right? Otherwise you can just, अदरवाइज क्या होगा, तुम क्वेश्चन के बीच में दोबारा क्वेश्चन पढ़ने जाओगे कि क्या क्या करना है, ठीक है, ऐसे दोबारा अप्रोच आता है। उसके बाद क्वेश्चन एक बार बढ़िया क्लियर हो जाए, उसके बाद दोबारा से टेस्ट केसेस पे जाना है। पहले उससे पहले कंस्ट्रेंट्स देखने सारे, कंस्ट्रेंट देखने के बाद ही तुम्हारे दिमाग में अप्रोच आएगी कि मैं उस टाइम लिमिट्स के अंदर कैसे उसकी एल्गोरिथम बिल्ड कर सकता हूँ। उसके बाद टेस्ट केसेस देखने हैं, टेस्ट केसेस समझने के बाद अगर पूरा क्वेश्चन क्लियर है, टेस्ट केसेस बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे। फिर उसके बाद the whole thing is left is writing the code and how speed you are, how good you are in the speed writing the code, right, कि कितनी स्पीड में आप फटाफट लिख सकते हो। So this is all about the implementation. So let me just now explain my code, like what I have did. So at first I've taken the inputs nmk and here is a vector string कि मैंने पूरा n into m का string input ले लिया a में, right. So यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बनाया visited and या अब यहाँ अब ये एक लैम्डा फंक्शन है, मतलब मैंने उसके अंदर ही कॉल कर लेता हूँ मेन के अंदर, तो वो बाद में देखेंगे कहाँ कॉल कर रहा हूँ मैं, राइट। सो यहाँ पर मेन चीज़ आती है, मैंने यहाँ पर क्या किया, n into m का लूप चलाया कि मैं हर पॉइंट को देखूंगा और हर हाइट का देखूंगा। आई कैन यूज ब्रेक है, राइट। अगर आई कोमा जे स्टार है तो मैं क्या करूँगा, मार्क फंक्शन कॉल करूँगा और मैं डी हाइट को चेक करूँगा, लाइक आई एम यूजिंग डी फ्रॉम के टू एन। अगर आई कोमा जे स्टार है तो फिर मैं डी हाइट का चेक करूँगा, अगर वो डी हाइट वैलिड है तो मैं इसको स्टार मार्क कर दूंगा, राइट। अदरवाइज आई विल मेक, अगर वो करंट वैल्यू स्टार नहीं है तो मतलब वो डॉट है, जो डॉट हमेशा ट्रू है तो उसको मैं जाने दूंगा, means it can be something, anything, right. So I will make true and I can just break here because I don't have to use this every time, right. Now let me just dive into the mark function. This is the mark function, right, this is the mark function. So what does this marks function do? So सबसे पहले क्या है कि मैं 1 से लेकर d तक चला के हाइट देखनी है हमें, मिनिमम 1 है कि नहीं है, राइट। अब यहाँ पर बेस कंडीशन है कि वो ग्रिड से ओवरफ्लो ना करे, ठीक है। ग्रिड अगर वो पॉइंट ही ग्रिड के बाहर जा रहा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि हमारे पास नहीं, मैं उस हाइट की नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मुझे मिनिमम डी चाहिए, राइट। अब अगर आई माइनस वन और वाई माइनस आई, मैंने एक्स को वाई पास किया ना, ओके, एक्स माइनस आई और वाई माइनस आई भी स्टार नहीं है, या फिर एक्स माइनस आई और वाई प्लस आई भी स्टार नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक स्टार नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूँगा क्योंकि दोनों को स्टार होना जरूरी है, राइट। दिस इज द केस। अगर यहाँ पर सब चीज़ पास करती है तो मैं लूप के बाहर आऊँगा, रिटर्न नहीं तो फिर उससे पहले रिटर्न हो जाऊँगा, ठीक है। सब पास कर दे, रिटर्न बाहर आने के बाद मैंने एक्स को वाई को विजिट मार्क किया, देन आई हैव मार्क एवरीथिंग आई हैव विजिटेड, कि मतलब जो आई एक्स माइनस आई वाई माइनस आई और एक्स माइनस आई और वाई प्लस आई, इन सारे पॉइंट्स को जो टिक बना रहे हैं उनको मैंने यहाँ पर ट्रू मार्क कर दिया। आफ्टर मूविंग उस मार्क लूप के बाद मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, अगर कोई भी विजिटेड फॉल्स है तो मैं वहाँ पर नो प्रिंट कर दूंगा क्योंकि हमें सारे स्टार्स, मतलब क्योंकि हमने डॉट्स को तो विजिटेड मार्क किया ही है। अब जो फॉल्स आ सकते हैं वो उनकी पॉसिबिलिटी स्टार्स की, अगर स्टार्स फॉल्स है इसका मतलब वो टिक में नहीं आ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, नो, अदरवाइज आई विल प्रिंट येस। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड या you have to implement this question again by yourself and oh yeah, you need to practice, right. Implementation is all about practice, right. So I have given you idea like how you can think is like क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होता है, बस क्वेश्चन को एक बारी बढ़िया से पढ़ के
बस इम्प्लीमेंट करना रहता है, राइट. So at last I would just say about the Newton School, because this video is possible due to Newton School. So you just visited their website and you can just participate in the monthly contest. So recently the monthly contest also happened. So they give the exciting prizes for the first top 500 participants with the Amazon vouchers of 100, and the top 3 prizes of 10k or 15k, right? They are very good. So you can participate in them also. And yeah, do visit the website. The link will be in the description, and the code and the program link will be also in the description, right? So if you like the video, do hit the like button and subscribe the channel, right? So we will meet in the next video, right? Bye. Happy coding.